الحمدللہ یا رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور نوجوان قوم اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روزے اور اس کے جو مسائل کے اعتبار سے جو بیان اس کا سلسلہ جاری ہے، اس کا آج دوسرا حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے آج روزے کے مسائل کے اعتبار سے۔ عزیزان محترم، یہ ایک نسخہ بھی ہے امامنا مہدی موعود کے دائرے کے اعتبار سے کہ فرماتے ہیں کہ مہدی کے دائرے کا کتا بھی ضائع نہیں کر کے، مہدی کے دائرے کا کتا بھی ضائع نہیں۔ اس کا آپ لوگ جو سنیں تو خود معلوم ہوگا کہ ادھر کتا کر کے جانور کا نام لیا گیا ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور نہیں بلکہ جن کا وہ اصلیت ہے، امامنا مہدی موعود کے دائرے میں تھا، کالو کے نام سے یاد کرتے۔ جب دائرے میں جو لوگ روزہ رکھتے تو معمولی اعتبار سے کالو کو بھی یعنی کہ وہ کتے کو بھی غذا دیتے، دودھ یا جو کچھ بھی ہے دیتے، لیکن دن میں وہ کتا کھاتا نہیں، اور یہ خطرہ بھی دودھ کیا پانی کیا کچھ بھی نہیں پیتا شام تک، طلوع آفتاب تک۔ طلوع آفتاب ہونے کے بعد، غروب آفتاب ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد اختیاری کیا جاتے ہیں، اختیار کرتے ہیں جو دائرے کے لوگ، دائرے کے فقراء، تو اس وقت دیتے تو کھاتا۔ تو صحبت صادقین کا اثر دیکھیے، کتا بھی روزے کی چیز کے اہمیت جان کے دن بھر نہیں کھاتا، بلکہ وہ غروب آفتاب کے بعد جب اختیاری شروع ہوتی ہے تو دوسروں کے ساتھ میں کھاتا۔ تو عزیزان محترم، کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو روزے جب رکھنے کی بات آتی تو فوراً ہمارے کو کئی قسم کے بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں، کئی قسم کے پرابلم آ جاتے ہیں، اور سٹریس، ٹینشن، ایک طرف شوگر وغیرہ بولتے ہیں۔ اور میں بڑپن کی بات نہیں کہتا، یہ ناچیز گنہگار بندہ بھی ایک ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، دنیا کے اعتبار سے ڈائبٹک پیشنٹ ہوں میں، یہ گنہگار بندہ، لیکن عام دنوں میں ایک تھوڑا دیر گزر گیا تو کوئی کھانا پینا نہیں تو یعنی کہ کچھ بےچینی اور شوٹنگ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پسینہ نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، فوراً کھا کے چھونا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، رمضان کا مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اب تک بھی مسلسل کون سے روزے بھی قضا ہو نہیں دیا، اور بندہ بھی روزے کو نہیں چھوڑا، صبح سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی یہ بندے کو بیماری سے محفوظ رکھا۔
थोड़ी भी तकलीफ नहीं, थोड़ी भी जुम्बिश नहीं, थोड़ी भी जो है परेशान नहीं, कमजोरी नहीं, ना पसीना निकलता ना कुछ नहीं, गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो और सर्दी का मौसम हो, तो ये खुदा की शान है। तो बीमारी वाले ऐसे कितने की पेशेंट हैं जो है शुगर पेशेंट, जिनको जब पापा से पूछो रमजान के महीने में हमारे को तकलीफ ही नहीं मालूम होती, तो इफ्तार करने के बाद 1 घंटा आधा घंटा गुजरते तो देखो कि बेचैनी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। रोजे की हाल तक अल्लाह तबारक व तआला हमको महफूज होता है, क्योंकि जो हमें अल्लाह के लिए रोजा रखते ही तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी जान का जो है गारंटी देने वाला है। जान गारंटी देने कौन है? अल्लाह ताला है। यहाँ गारंटी जो लोग जो रोजा नहीं रखते हैं उनका कौन है? डॉक्टर है गारंटी देने वाला। डॉक्टर बोले तो ही रोजा रखेंगे, हमें डॉक्टर बोले तो रोजा रखते हैं। और ऐसे भी जो है मुसलमान हैं, जो मुसलमान जो है तलब दुनिया के तलब में मुब्तला होके बराबर टाइम में चाह होना, बराबर टाइम में जो है यानी कि पान सुपारी वगैरह होना, नहीं तो रोजा नहीं होता उनका, नहीं तो गुजारा नहीं होता। तो ऐसे जो है लोग मुसलमान भी हैं कि जिन्होंने जो है ये तलब में पढ़ के जो है रोजे को फर्ज करदा रोजे को भी छोड़ देते हैं। तो अज़ान मोहतरम सोचने की बात है, रोजा ऐसी चीज नहीं, रोजा जो है वो है 12 महीने में 11 महीने हमें खा पी के मस्त रहते ही अल्लाह के लिए, वो भी यानी कि 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे के लिए क्या हमें नहीं कर सकते? एक दिन में 12 घंटे अल्लाह के लिए हमें जो है यानी कि उसके लिए जो है अल्लाह के खातिर, अल्लाह की खुशूदी के लिए, अल्लाह के रजा के लिए क्या हमें हटा नहीं सकते? तो अज़ान मोहतरम के सोचने की बात यह है, ऐसे भी लोग हैं कि जो है रोजा होते ही इफ्तारी होते ही क्या करते मालूम, वो कुछ छोटा गैप होता उसमें, इफ्तार हो के गंजी पीने वगैरह, एक 5 लहजे का, वो 5 लहजे में ये सिगरेट पीने वाले आते, भाग के जाते मस्जिद के बाहर, भाग कर जाते, छपके खटके जो है 2-3 दम फूक लेके जो है क्या करते, फौरन आके जो है जमात में शामिल हो जाते। रोजा रोजा रखते, लेकिन इफ्तियार होते ही जो है वो तलब, वो सिगरेट पीने का जो है वो जो सुबह से शाम तक नहीं था ना, इसलिए जो है फोन में रहते हैं, रोजा खुद इफ्तियारी करते ही फौरन जाना जो है सबके खड़का में कोने में खड़के जो है 3-4 दम मार देना, और जो है सीधा आके उनको सुकून, तभी सुकून मिलता है। तो इसलिए अज़ान मोहतरम ये तलब भी नहीं रहना चाहिए, ये भी जो है एक खुदा व ताला को हमें धोखा दे रही। सुबह से शाम तक रोजा रखा, इफ्तियारी के बाद जो है तो तेरे को दोबारा क्यों तलब शुरू हुआ? इसका माना क्या है? तौबा करके फिर गुनाह, तौबा करके फिर गुनाह करने के बराबर। तो अज़ान मोहतरम तलब बाल बराबर नहीं रहना, और रमजान का महीने में ऐसे एहतियात करना, ऐसे पर इसलिए अल्लाह ने बोला कि पहले बयान में क्या हो, लअल्लकुम तत्तकून करके बोला, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ करके। तो अल्लाह परहेजगार बनने के लिए रोजा रखा है, हमारे को रोजा दिया गया है, इसलिए हमें जो है हर तलब को छोड़ना है, हर तलब को भी हमें जो है आज का ऐसा है कि हम जो है ऐसे जो बंदे हमारे में जो है थोड़ी भी जो चाह पानी के बगैर हमें वक्त हुआ तो बराबर चाय पी लेना, नहीं तो जो है हमारा जो है जहन काम नहीं करता, दिल काम नहीं करता, गुस्से में आते ही बीवी से लड़ाई झगड़ा, और बेटियों से झगड़ा, बच्चों से जो है यानी कि गुस्सा, ये शुरू होते हैं, क्यों? चाय नहीं मिला बोल के। रमजान के महीना जब आता है तो ये गुस्सा कहाँ गया भाई? शाम का वक्त हो यार, सुबह में बैठी नहीं, कुछ भी नहीं, और सुबह से लेके शाम तक जो है गुरूब आफ्ताब तक जो है हम सब्र के साथ रहते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है, अल्लाह कहते हैं ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना सब्र का महीना है, रमजान का महीना सब्र का महीना है, ताकि तुम्हें सब्र का हद अल्लाह ताला दिखाने का महीना है, ताकि बंदा जो है सब्र का हद भी देख के जो है अल्लाह के बारगाह में पेश करता है, या अल्लाह तेरे बारगाह में मैं सब्र का हद भी मैं देख दिया।
इससे भी अगर आगे बढ़ के तो और भी इजाफा करके तो रखने के लिए कहता है, भूखा पड़ने के हम तैयार हैं। तो अज़ान मोहतरम कि हम देखते हैं कि जो है कितने जंग बदर में और जो रमजान के महीने की 17 तारीख ही जंग बदर हुआ था, और जंग बदर में और करबला के मैदान में इमाम जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है प्यार नवाज इमाम हुसैन ने जो यानी कि कौन से हाल में शहीद हुए, करबला में रोजे के हाल में शहीद हुए। आशुरा के दिन वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार के मुताबिक आपकी सुन्नत आशुरे का रोजा रखने का था। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है रोजे की हालत में जो है शहीद हुए, क्या मर्तबा होगा। तो अज़ान मोहतरम सोचने की बात है, पानी तो पानी नहीं मिला, एक दिन के रोजे रखने के लिए हमें जो है तड़प रही। यहाँ पर जो है यानी कि दिन भर जो भूखे और ऐसे भी गुजरे ही सहाबा के पार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की जो है हयात एवा देखें तो मालूम पड़ेगा, ऐसे भी जो नाजुक था कि एक खजूर में सब सहाबा भी जो है निके इफ्तियार करते हैं। अल्लाह हमारे को कितने मेवे दिया, दस्तरखान बिछा दिया, लजीज से लजीज मेवे, एक दो नहीं 15-20 किस्म के जो है मेवे ग़िज़ायाँ खाने के लिए हमारे को शिकम नहीं है, शिकम में जगह नहीं है हमारे को, शिकम में जगह नहीं है हमारे को। उतना हमें जो है देखते ही लेकिन इतनी आरामी होने के बाद भी अज़ान मोहतरम हमें अगर अल्लाह की इतनी नियामतें देख के भी अल्लाह ताला हमें इम्तिहान लेता है, इतना देने के बाद भी क्या मेरा बंदा मेरे लिए रोजे रखता है क्या नहीं। सोच के देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को, बुजुर्गों के जमाने को, ताबे-ताम के जमाने को, सलफुस सालिहीन के जमाने को, और जो है यानी कि जो है सालिहीन के जमाने को सोच के देखो, उन लोगों का रोजा कैसा था। उन लोगों के रोजे का 1 घंटे के बराबर भी नहीं हमारा 1 महीने का रोजा। 1 महीने का रोजा वो बुजुर्गों के 1 घंटे के रोजे के बराबर भी नहीं हो सकता। अज़ान मोहतरम कि जो है इतनी तकलीफों के साथ जो है उन लोग रोजा गुजारा था। सहरी को सहरी खाने के कुछ नहीं मिलता और जो है इफ्तारी कुछ नहीं मिलता। अज़ान मोहतरम उससे बढ़ के जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को जो है यानी कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा नवाजिश किया है कि आप तो पहले जो पार्ट में जो है बंदा आपके सामने रखा है मगफिरत का, और जो पहले रहमत का, उसके बाद मगफिरत का, उसके बाद जो है निजात के, ये 3 जो है यानी कि जो है हमारे को जो है इसमें रमजान के फजाइल में उसकी जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये 3 चीजों का जो है बहुत बड़ी यानी कि एक नुसरत है, आला नुसरत हमारे को मिलती है। इतनी चीज होने के बावजूद अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो जो है हमारे जैसे काहिल और नादान और अल्लाह के जो है एहसान फरामश कोई नहीं। तो मोहतरम गौर करो कि जो है रमजान का महीना आमदा है, आने वाला है, तो जो है हमें जरूरन जो है अल्लाह के बारगाह में रोजा रखना और जो कसरत से रखना और तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करना। तक़वा क्या चीज है? तक़वा वो चीज है अल्लाह ताला को सिर्फ डर के, अल्लाह को ताला के लिए, अल्लाह की राजी के लिए, अल्लाह के खातिर जो रोजा रखते हैं वो है तक़वा। वे तक़वा दूसरे दिखाने के लिए नहीं, नमाज में ज़ाहिरी होती है, हज में ज़ाहिरी होती है, ज़कात में कभी-कभी ज़ाहिरी हो जाती है, लेकिन रोज़े में खाली ज़ाहिरी नहीं होती। रोज़े में क्या होती है कि अल्लाह से बंदे का जो है सही वाबिस्ता होता है। तीसरा जो है पर्सन इधर जो है इन्वॉल्व नहीं होता, पर्दा भी नहीं है, बंदा और अल्लाह के दरमियान में पर्दा भी नहीं होता। सिर्फ अल्लाह ही जानता है बंदे की नीयत क्या करके है और बंदा जानता है मैं क्या नियत करूं बोल के। ये चीज है तक़वा, ये चीज सिखाती है रोजा हमारे को। तो अज़ान मोहतरम इससे बढ़ के और एक चीज क्या है तो जो यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो है रमजान का रोजे में जो है इतनी शिद्दत पैदा होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी कि बहुत प्यार करते थे अपनी उम्मत को। रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को बहुत प्यार करते थे, जैसा कि माँ अपने औलाद को प्यार करती है ना, मोहब्बत करती है ना, जब तक औलाद नहीं खाता माँ नहीं खाती, इंतजार रहती है बेटा कब खाएगा,
औलाद कब खाएगा बोल के। तो जो है माँ से भी बढ़ के मोहब्बत थी उम्मत के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखे दिल में सोचते थे अल्लाह आपके दिल की बातों से बाखबर है, पूरा मालूम है अपना हबीब के दिल में क्या बात होती है कि नूर इलाही है ना, वो नूर मोहम्मदी क्या है, नूर इलाही है। तो दिल में जो रंज पैदा होता है फौरन अल्लाह को मालूम हो जाता है। वो ये कनेक्शन बिटवीन अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान, नो गैप है। दो भी नूर, अल्लाह भी नूरुल्लाह, ये नूर मोहम्मदी, दो भी नूर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सोचे, मेरी प्यारी उम्मत, मेरे प्यारे जो है कमज़ीन लोग और कम उम्र के लोग और जो है ऐसी हालत में जो रोजा रखे होंगे तो उनकी हालत कैसी गुजरती होंगी, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना और जो है दिन भर रात भर रोजे रखना। तो ऐसी हाल में मेरी उम्मत कैसा जो है कि पहले नबियों की उम्मत के जैसा जो है कैसी सहेंगी और जो सहने की ताकत कैसी मिलेंगी और ये चीजों को बर्दाश्त करेंगी क्या नहीं क्या करके दिल में पैदा हुआ। तो फौरन जो है अल्लाह की रहमत भी जोश में आई, अल्लाह की रहमत भी जोश में आई और फौरन जो है अल्लाह के बारगाह में दुआ करे। दुआ करते ही सहाबा कराम के पास बोले उठो तुम्हें सहरी के लिए, सहरी में बरकत है। क्या बोले, उठो सहरी के लिए, सहरी में बरकत है, सहरी मेरी सुन्नत है। यहूद रोजा रखते थे, उनको रोजा था, मूसा कलीमुल्लाह का मैं पहले पार्ट में बोला था, आशुरा का रोजा, शनिचर का रोजा वगैरह। लेकिन जो है यहूदियों के रोजे में भी मुसलमान रोजे में क्या फर्क है, यहूदियां से को सहरी नहीं है। मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश करके लेके दिया अपनी सुन्नत के एतबार से, उठो सहरी के लिए, खाओ तुम्हें, ताकि दिन भर तुम्हारे को तकलीफ ना हो जा, तकलीफ ना हो तुम्हारे को। उस प्यारी उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहरी का एक ऐसा एक जो है चीज हमारे को पेश की है ताकि हमें रात के 3-3:30 बजे उठ के जो है सहरी खाते ही हमें सहरी खा के रोजा रखो। अगर तुम्हारे को टाइम अजान का टाइम के 5 मिनट पहले भी टाइम बाकी रह गया और खा नहीं हुआ, एक मौज यानी एक प्याला जो है के दूध पी के तुम्हें जो है सहरी करो, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है सहरी मेरी सुन्नत है बोल के, इससे बरकत भी है बोल के। इतनी बड़ी बात है, एक सुन्नत है और दूसरा इसमें अल्लाह की बरकत भी है। इसलिए हमारे को जो है अल्लाह ताला की जो है यहाँ पर बहुत बड़ी रहमत मिली है कि जो है सहरी करना। दूसरा क्या है कि दिन भर रोजा रखने में तकलीफ थोड़ी कम होती है, उसके लिए ज्यादा मत खाओ, सहरी खाओ बोल के ज्यादा मत खाना, लिमिट उससे भी हद है, खाओ थोड़ा कुछ ताकि सहरी खा के अच्छा खा लेके सो जाना। फजर की नमाज खजा, रोजगार को नमाज खजा हुई तो उससे बड़ा गुनाह क्या है, कोई गुनाह, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि रमजान में एक फर्ज अदा करना दीगर महीनों में दीगर दिनों में 60 जो है के फर्ज अदा करने के बराबर है। रमजान के महीने में एक सुन्नत अदा करना, 2 रकात की नमाज अगर तुम्हें पढ़ेंगे, दीगर महीनों में एक फर्ज में जो सवाब मिलता है वो सवाब तुम्हारे को मिलेगा। तो सहरी को के खाने के लिए अल्लाह ताला हमको जो दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो बहुत बड़ी बदौलत है हमको मिली है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमको फरमाए थे तो हमें जो है सहरी करते ही। तो सहरी का जो है ऐसा है उसका जो है सहरी को हमें आजकल लोग कहते हैं कि 3 बजे कर लेना, 4 के अंदर कर लेना। सही तौर से सहरी का माना क्या है मालूम, यानी कि सुबह सादिक के पहले का वक्त, जैसा कि अब अजान देने का टाइम 4:45 का हो, 4:45 का हो कि तुम जो है 4:04 तक भी तुम्हें जो है
सहरी कर सकते हैं। अजान का टाइम 4:45 को है, तो मैं 4:30 तक भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं, यहाँ पर जो है नहीं, यानी कि 3 बजे के अंदर कर लेना। बहुत लोग 2 बजे सहरी कर लेते हैं, वो सहरी का टाइम ही नहीं, वो 2 बजे। 2 बजे को सहरी नहीं बोलते। सहरी का माना क्या, फजर के पहले का वक्त, अजान देने का पहले का वक्त को जो है वो टाइम को जो है सहरी बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी कि अजान के थोड़े देर पहले भी सहरी करे, बल्कि जो है मिशकात मज़ावी में है, आपकी सुन्नत में जो है मालूम होता है। आप जो है सहरी के लिए जो बताया गया टाइम जो क्या है, यानी कि फजर की अजान के थोड़े देर पहले भी तुम्हें कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि 3:30 के बाद, 3:30 से लेके 4:30 तक जो टाइम आपके एतबार से, आपके जो है यानी कि टाइमिंग के एतबार से 3:30 to 4:30 के अंदर तक अभी तुम जो है सहरी कर सकते हैं। ये है सहरी का टाइम। असल में 4 बजे करना बेहतर है, 4 बजे सहरी करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जो है यानी कि तकलीफ दिन भर रोजे रखने से जो है यानी कि जो है वो तकलीफ को, वो शिद्दत कम करने के लिए सहरी की चीज को बरकत के एतबार से, सुन्नत के एतबार से लाए। तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना। तुम्हें आधी रात को 2 बजे 1:30 बजे सहरी कर लेके जो है तुम्हें जो है बैठ के, तो क्या माना, सहरी नहीं होता ये सहरी नहीं है। 2 बजे करना, 2:30 बजे करना, 3 बजे करना भी नहीं है। आखिरी का वक्त रहमानी टाइम है ना, वो टाइम रहमान टाइम के दरमियान में आता है ये, तो सोचने की बात है। तो इसलिए आलिमों से जो है यानी कि उनसे जो है उनकी सोबत में रहो, मुशरिन की सोबत में रहो, पूछो करो, उसके बाद जो है इख्तियार करो। बड़े बड़ के बोले, हमारे अम्मा बोले, दादी बोले, दादा बोले, बोल के हमारी दादी 2 बजे उठ के सहरी करते, 10 बजे खा लेकर बैठ गए, तो क्या होगा? सहरी नहीं, वो सहरी का मतलब ही नहीं मालूम, सहरी का माना नहीं मालूम अक्सर लोगों को। सहरी किससे बोलते बोल के, असल में फजर की अजान के पहले का वक्त को सहरी बोलते हैं, ये खाली ज़हन में रख लो। तो सहरी करना बरकत है, उठो खाओ, जैसा कि अल्लाह ताला के फरमाए थे, उसकी मदद करते ही कितना बड़ा जो है इनाम है, दुख है, कितना शुक्रिया अदा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कम है अपनी उम्र के इतना भी करे ही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं सहरी उठते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, रोजा रखते नहीं। माँ पूछती बेटे को, अरे बेटे क्या रही है, सहरी को उठ के पेट भर के खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद रोजा भी रखता नहीं तू? तो बेटा कहता है, क्या माँ क्या बात करती हो तुम, फर्ज को नहीं रखा, कम से कम सुन्नत को तुम्हें अदा करने दे, सुन्नत को अदा करने दे। ऐसे लोग भी हैं आजकल, फर्ज को तो अदा नहीं करना हुआ मुझे, सुन्नत को भी अदा करना दे, सहरी खा पड़ना। ऐसे भी जो है जाहिल और जो है मक्कर लोग हैं। कैसा देखिए उसका टेक्निक देखो, उसकी फिलॉसफी लॉजिक देखो कैसी है कि ऐसे भी लोग निकले आजकल, सहरी भी खा लेते हैं, इफ्तार भी कर लेते हैं। हाँ, इफ्तार भी कर लेते हैं रोजा सब बैठ के, हाँ रोजा मालूम होने के लिए। धोखा करे बीच में भी खाना, वो अलग चलता है, सिगरेट फूकना वो करना, ये तो उनको जो है रोजा रखे तो इस तरह से मना नहीं, सिगरेट नहीं पीना, पानी नहीं खाना, जर्दा नहीं खाना, वगैरह वगैरह ऐसे बनाना। तो जो वो खा नहीं, इससे उनको जीवन नहीं है, मर जाएंगे उन्होंने, जिंदगी मर जाएंगे। इसलिए क्या करते हो, वो क्या करते हैं, सहरी भी कर लेते हैं और जो है इफ्तारी भी कर लेते हैं, बीच में जो है जर्दा इर्दा खा लेके, पानी खा लेके, चाय यहाँ पी लेके दिन भी गुजार लेते हैं। मोहतरम, ऐसे भी लोग हैं, तो अल्लाह तबारक ताला जो है उनको तौफीक देना, जो है ये चीज़ों की अहमियत नहीं समझे। तो गौर का मुकाम है कि अल्लाह तबारक ताला जो है हमारे को हर एक एतबार से बहुत दिया है। और एक बात में सहरी के एतबार से और एक बात हमारे जो है आवाम के सामने चाहता हूँ, क्यों तो सी एतबार से तुम उठ के सहरी के लिए दांत लगते ही, दांत मंजन करते ही, मंजन करने के बाद याद रखो कि वजू भी कर लो, वजू भी कर लो। ये बंदे का भी तर्ज अमल है, सहरी कुटते वक्त दांत मंजन करने के बाद वजू भी कर लेते, करने के बाद वो बरकत के ग़िज़ा, बरकत की चीज खाने के लिए बैठता है। सही तरीका है ये, ताकि अल्लाह की रहमत ज्यादा दूर होती है।
برکت زیادہ نظر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے یعنی کہ خوش ہوتی ہے تاکہ میرا بندہ جو ہے میری سنت کو ادا کر کے جو ہے اللہ کے احکام کو ادا کر کے با وضو بیٹھ کے جو ہے دسترخوان میں سحری کرتا ہے. کتنا بڑا جو ہے مقام ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ خالی منجن کر لیتے ہیں، آگے سحری کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اذان کے ٹائم ہونے کے بعد 10 منٹ کے پہلے نماز کے 10 منٹ کے پہلے انہیں وضو کرنے جائے گا، وضو کر لے گا، نماز پڑھتے ہیں. نہیں، وضو کر کے تم سحری کرو، سحری کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا نماز کے لیے تمہیں تو نکل جاتی ہے. تمہیں مسجد کو نکل جاؤ، نکل کے وہاں پہ جو تلاوت کرنا ہے کرو، اور جو کچھ ذکر کرنا ہے ذکر کرو، اور اس کے بعد جو ہے تحت الوضو کے اعتبار سے تمہیں پڑھ سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں الاؤڈ ہے وہ کہ اگر تمہیں چاہے تو جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے تاخیر ہو کے بھی کر سکتے ہیں. نہیں جو ہے دوبارہ بھی تم وضو کرو تحت الوضو پڑھنے کی نیت سے، الحمدللہ وہ بھی خیر ہے، لیکن بشرطے کہ بہتر یہ ہے کہ سحری کھانے کے پہلے جو ہے یعنی کہ وضو کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ سوچو کہ جو ہے ہمارے کو اللہ بہت بڑا انعام دیا ہے روزے کے اعتبار سے، یہ سحری کھانا، اور سحری کا جو ہے سحری بھی جو ہے برکت کی چیز کو فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے روزے داروں کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ شدت کی جو تکلیف ہوتی ہے. اب گرمی کے موسم میں جو ہمیں رکھتے ہیں روزے میں رکھتے ہیں، اتنی گرمی شدید گرمی ہوتی ہے، ایسی حال میں ہمیں جو ہے یعنی کہ ہمیں جو ہے تاب نہیں لا سکتے، لیکن برداشت کرنا، وہ گرمی کو برداشت کرنا، گرمی میں روزے رکھنا اصل روزہ ہے. یہ بندے کے اعتبار سے گرمی میں روزے رکھنا، گرمی کو سہا کے روزے رکھنا اصل روزہ ہے وہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا مقام رکھا ہے ناپاک لوگوں کو جانے کے لیے. نہیں، گنہگار ہو کے ناپاک جو لوگ آتے ہیں گناہ سے ناپاک ہوتے نا، وہ لوگوں کو جانے کا مقام جنت ہے. جنت کون سا مقام ہے؟ پاکیزہ لوگ، گناہ سے جو پاک ہوتی وہ لوگ جانے کا مقام ہے جنت. ایک مسجد میں ایک آدمی جو ہے گندے پاؤں سے اور جو گندے کپڑے پہن کے آیا تو ہمیں الاؤڈ کریں گے؟ نہیں، باہر کر دیں، نکل جا، باہر جا بولیں گے. یہ پاک جگہ ہے مسجد، جا پاک ہو کے اندر آ بولتے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن جو ہے روزے حشر کے دن جو ہے جہنم کی انگار سے جلانا پسند نہیں کرتا. اللہ کو پسند نہیں. پیارے نبی، ان کے پیارے نبی کی پیاری امت کو جو ہے ان کو جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے ان کو جہنم میں جلانا، جہنم کے عذاب میں جلنا وہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس لیے روزے میں تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ. روزے کے دن بھر کی بھوک پیاس میں جو ہے انہوں اپنے آپ جو ہے یعنی کہ جل کے جو ہے ایک ایک گناہ کو جو ہے انہوں دور کرتے ہیں. اور جو گناہ ان کی روزے کی وہ شدت گرمی کے ساتھ روزے کی یعنی کہ وہ جو ہے یعنی کہ وہ کثرت کی عبادت کے ساتھ جو ہے ان کی گناہ بھی پاک ہوتی ہے. وہ سے لوگ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے کو ڈائریکٹ جنت ہے. رسول اللہ کی امت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے دنیا میں روزے کا وہ پانی سے پاک کر کے گناہوں کو دور کر کے شدت کی گرمی میں بھی جو ہے پیاس بھوکا ڈال کے جو ہے رسول اللہ کی امت کو دنیا میں پاک کر دیتا ہے. اس کے بعد ان کا مقام جنت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ آنے والے رمضان کے مہینے میں اس طرح کا اللہ کے خاطر یہ جان بھی قربان کرنے کے اعتبار سے روزے کی توفیق عطا فرما، اور جسمانی اور روحانی صلاحیت دے یا اللہ تبارک و تعالی. اور نیت بھی اے میرا ماں بہنوں، میں نوجوان قوموں، نیت بھی کثرت کے ساتھ دل کے اعتبار سے جو ہے تمہیں فجر کی نماز میں باندھ لو، اسے تاخیر مت رکھو.
اگر اس کے بعد اللہ دیکھ لے گا بیمار پڑتے ہی کچھ ہوتا ہے، بے ہوشی وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو بات کی بات ہے فجر کی اذان ہوتے ہی، فجر کی جو ہے یعنی کہ اذان ہو کے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تمہیں سحری کرتے ہی جو آری نیت ہو گئی تمہاری روزہ رکھنے کی، اور جو فجر کی نماز ہونے کے بعد ہی جو ہے نیت بھی باندھنا مستحب ہے، وہی صحیح تقویٰ ہے، وہی صحیح جو ہے فلسفی ہے اسلام کی اور روزے کی بھی، تو اس لیے جو ہے عزیزان محترم ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما تاکہ ہمیں کثرت کے ساتھ روزہ رکھے اور ہم کو صحیح سلامت کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنے کی اور جو روحانی اور جسمانی صلاحیتیں دے اور عافیت عطا فرما یا اللہ، ہم سب لوگوں کو اور ہر ایک نوجوانوں کو، ہر ایک بچوں کو اور ہر ایک ماں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بارگاہ میں صحیح اعتبار سے بات مکمل اور اخلاص سے بات عطا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگلا جو تیسرا پارٹ آئے گا اس میں افطاری کے بارے میں چند باتیں بولنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ بندہ تیسرا پارٹ کل یا پرسوں جو ہے یعنی کہ آپ کے سامنے آئے گا، تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان کے مہینے میں صحیح اعتبار سے خوشی سے اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔